So that means if depreciation of value is what, then you are going to calculate this one value with your minus sign. Minus sign in the sense कि अभी तक आप फॉर्मूले पॉजिटिव यूज कर रहे थे, नाउ इन दिस वन यू कैन यूज योर नेगेटिव साइन, तो अब नेगेटिव फॉर्मूला भी यूज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज जैसे डेप्रिसिएशन वैल्यू, सपोज स्टार्टिंग वैल्यू वी नॉट एंड आफ्टर सम टाइम इट्स वैल्यू इज वी एन, sometimes its value is Vn. After some time its value is Vn, that means what? 100% it depreciate. And if Vn is equal to Vn, the price value after some time. And V naught is what? V naught is your initial price. तो उसका initial price रहा होगा. That is V naught. Vn is equal to V naught and in bracket 1 minus R upon 100 raised to power n. Right? This is the formula to calculate the depreciate value of some article. Vn is the what? Price of the article after some time. V naught price of the article at the starting, यानी new price. Starting में जो लिया होगा आपने. And R is what? R is the rate of interest. And N is what? Time. Clear? Suppose that we are purchasing a car. The car cost is 3,60,000. Its cost is 3,60,000. 3,60,000 एक कार की मेरी प्राइस है. This is the price value. Yes, someone is asking, just wait for 1 minute. Okay. Board is not clear. I'm just saying for 1 or 2 minutes, I will take time. I think now this is clear, visible to all of you. It's visible. Yes, sir. Okay, that's visible. This is our question. Vn is equal to V naught 1 minus R upon 100 raised to power n. And we are purchasing a car. This is what? This is the formula for depreciation value. Depreciation value means cost after some time is decreasing, right? Vn is the what? Cost is after some time. V naught is what? At the beginning price of the article. R rate of interest, N is the time period. So if we are going to purchase a car price 3,60,000, ठीक? यानी कार का जो प्राइस है 3,60,000 है, and they are saying if price depreciate at the rate of 15% per year, 15% per year, इसका जो depreciation है that is a 15% per year. Then what will be the price of the car after 5 years? After 5 years, यानी n equal to 5 years. के बाद अब इस कार की प्राइसिंग वैल्यू क्या होगी, राइट? वी आर यूजिंग टू यूजिंग दिस फॉर्मूला Vn is equal to V naught. Vn is equal to V naught in bracket 1 minus R upon 100 raised to power n. ठीक है, Vn is equal to V naught in bracket 1 minus R upon 100 raised to power n. This is the formula. V naught is the starting price of this car. So starting price is what? That is 3,60,000. 1 minus R is what? Rate of interest 15%. 15 upon 100 raised to power n is what? N is your 5. N equal to 5. Clear? मैंने क्या क्या सिंपल मैंने इस फॉर्मूले में यूज कर दिया. एंड थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं. आफ्टर गोइंग फॉर सम कैलकुलेशन, 3,60,000 and 5 3s are 520 and 20 when the 20 minus 3, 20 minus 3, that is what? That is your 17. 20 minus 3, that is your 17. 17 upon 20 raised to power 5. Okay? This is what? That is your Vn. Vn is equal to 3,60,000 multiply 17 upon 20 raised to power 5. And now we are going to take log. Take a log on both sides. So log of
Vn log of that quantity 3,60,000 in bracket dot 17/20 raised to power 5. लॉग मल्टीप्लीकेशन को क्या करता है? प्लस कर देता है. a इंटू बी दैट इज लॉग a प्लस लॉग b दैट इज इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग b. पावर आगे आ जाएगी प्लस 5 टाइम्स लॉग 17/20. फ्रैक्शन को लॉग क्या करेगा? सब्ट्रैक्ट कर लेगा. ब्रैकेट ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं वन सेकेंड. लॉग 17 माइनस लॉग 20. लॉग a अपॉन b यूज कर लिया. यहाँ एक साथ टू प्रॉपर्टी यूज की. पावर को आगे ले आए लॉग ऑफ दिस एंड लॉग ऑफ फ्रैक्शन क्या करता है? न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. अब क्या करते हैं? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लेंगे, इसका लॉग ले लेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लेंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म में टेकन लॉग. अब आपको सिंपल लॉग लेते हुए चले जाना है. लॉग लेते हुए चले आना और इसको जब लॉग टेबल का यूज कर लेंगे इन अवर क्वेश्चन, देन यू विल सी दैट वी विल गेट व्हाट? वी विल गेट 5.20. ये रिजल्ट आएगा आपके पास. ईच एंड एवरी शुड हैव लॉग टेबल. लॉग टेबल आपके पास रखेंगे आप लोग, राइट? 5.2033. दिस इज व्हाट? दिस इज लॉग ऑफ Vn, बट दिस इज नॉट आवर आंसर. अभी ये आंसर नहीं है. सो लॉग ऑफ Vn इक्वल टू दिस. सो Vn इज व्हाट? दैट इज एंटी लॉग. एंटी लॉग ऑफ 5.2033. ठीक है. अब आया एंटी लॉग 5.2033. तो एंटी लॉग टेबल में देखेंगे पॉइंट 20 का 3 लिखेंगे एंड द डिफरेंस 3. उनको फिर ऐड करके डिजिट लिख देंगे. तो पॉइंट इसका देखेंगे डिजिट तो और ऐड करेंगे 3 मेन डिफरेंस. तो आपके पास रिजल्ट आएगा 1597. 1597 ये डिजिट आएगा. 0.20 का 3 देखेंगे एंटी लॉग एंड 3 मेन डिफरेंस ऐड करेंगे. दिस विल यू फॉर्म. ये रिजल्ट आपको फॉर्म हो जाएगा. बट हियर इज व्हाट? 5. तो 5 + 1 6. आफ्टर 6 डिजिट यू विल पुट डाउन द 0. बताया था ना मैंने, अगर यहाँ पे नंबर है उसमें 1 ऐड कर लेते हैं. दिस इज व्हाट? दिस इज योर लोकेशन ऑफ डेसिमल. तो 5 + 1 6. आफ्टर 6 डिजिट 1 2 3 4 5 6. अब ये आएगा 0. तो अब उस कार की जो वैल्यू है, कार की जो प्राइस है आफ्टर 5 ईयर, इट विल बी 1,59,700. ये इसकी कॉस्टिंग होगी आफ्टर 5 ईयर. यस, आई एम गोइंग टू जस्ट रिपीट. Our question is what? If you are purchasing car 3,60,000, right? आपने एक कार को 3,60,000 में परचेज किया. वो कह रहा है इसका डेप्रिशिएट होगा 15%. 15% पर एनम. यानी हर साल इसकी जो कॉस्टिंग होगी 15% डाउनवर्ड होगी, कम होती चली जाएगी. तो कह रहा ठीक है, इट्स ओके. नाउ आफ्टर 5 ईयर, व्हाट विल द प्राइस ऑफ दिस कार? इस कार का प्राइस क्या होगा? तो आपने डेप्रिशिएशन का ये फॉर्मूला यूज किया. Vn इज इक्वल टू V नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस R अपॉन 100 रेज़्ड टू पावर n. Vn क्या है? उसकी प्राइसिंग आफ्टर n ईयर. V नॉट इसकी बिगनिंग प्राइस, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, n क्या उसका टाइम. ठीक. इस फॉर्मूले में जाके आपने V नॉट की वैल्यू पुट की. बिगनिंग प्राइस 3,60,000, R है 15/100, n की जगह पुट कर दिया आपने 5. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, ये आया ना. इस स्टेप के बाद लिखना होगा टेकन लॉग ऑन बोथ साइड. If you are taken log on both sides, ठीक. तो log of this, log क्या करेगा? पहले log लिख लिया. अब प्रोडक्ट होता है log, प्रोडक्ट को क्या करता है? प्लस कर लेता है. पावर होती, पावर आगे आएगी, फ्रैक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट कर लेता है. अब इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे. डेसिमल यहाँ लेके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में. इसको जब सॉल्व किया तो मेरा आंसर ये आया 5.2023. तो log of this equal to this one. तो Vn is what? log जब इधर आता है तो उसका रोल प्ले होता है एंटी लॉग. नाउ इट विल वर्क एज ए एंटी लॉग. तो एंटी लॉग ऑफ दैट वैल्यू. अब आप एंटी लॉग टेबल में 0.20 का 3 देखेंगे और मीन डिफरेंस 3 देखेंगे. उसको मीन डिफरेंस 3 को इसमें ऐड कर लेंगे. तो रिजल्ट आया 1597. 1597 इज द रिजल्ट. लेकिन डेसिमल के पहले लिखा था 5. तो 5 पे अगर मैं 1 ऐड करूंगा तो 5 + 1 कितना हो गया? 6. तो आफ्टर 6 यानी 1 2 3 4 5 6 के बाद आपको डेसिमल लगाना है. तो Vn की वैल्यू आ गई 1,59,700. दैट मींस द वैल्यू ऑफ दिस कार आफ्टर 5 ईयर, जिसकी प्राइस वैल्यू स्टार्टिंग में ली थी आपने कार 3,60,000 की, एंड आफ्टर 5 ईयर इट विल कॉस्ट
1,59,700. Right? I hope so. This depreciation value question is clear to all of you. Right? Now we are discussing some more problems. So basically 3-word problem, or you can say the application of log and T-log in your syllabus. First is your compound interest, already done. Second one is your population growth, already done. And today we did depreciation value of article. So these 3 types of your word problem will come in your next exam. First thing. And second thing, the most important thing, that is what? That is use of log table and anti-log table. This one is perfection to all of you. ये सबको अच्छे से आ जाना चाहिए. अगर इसमें प्रॉब्लम होगी that will be, फिर आपको वर्ड प्रॉब्लम में प्रॉब्लम आ जाएगी. फिर आप उसमें लॉग एंटी लॉग का यूज प्रॉपर नहीं कर पाए. अब मैं पॉपुलेशन ग्रोथ का भी एक क्वेश्चन करता हूँ. पॉपुलेशन ग्रोथ का एक और क्वेश्चन करता हूँ. पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए एक मैंने पहले तो फॉर्मूला बताया था, उसको लिख लेता हूँ. दैट इज पी इक्वल टू, क्या होगा? पी इज इक्वल टू पी नॉट. ग्रोथ है तो इसलिए प्लस आ जाएगी बीच में. 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर. दिस इज व्हाट, दिस इज द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री. दैट इज पी उसकी आफ्टर सम टाइम, पी नॉट उसकी इनिशियल जहां से आप उसका मेजर ले रहे हैं, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एन उसका टाइम पीरियड है. राइट? तो ये इसकी वैल्यूज हैं व्हेन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री. इससे एक बेस क्वेश्चन लेते हैं. कह रहा था प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ कंट्री इज, किसी कंट्री की प्रेजेंट पॉपुलेशन यानी आपको पी नॉट दे रखा है. दैट इज व्हाट, दैट इज 9261,000. किसी कंट्री की पॉपुलेशन आज की डेट में ये लिखी 92,61,000. इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं. फिर कह रहा इफ हैड बीन इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3% एनुअली. कह रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है उसने 3% इंक्रीज करता है. कह रहा सो नाउ व्हाट वाज द, नाउ व्हाट विल द पॉपुलेशन 3 ईयर. ठीक है. कह रहा 3 साल के बाद इसकी पॉपुलेशन क्या होगी आफ्टर. आसान क्वेश्चन है. n इक्वल टू 3. डिजिट को फॉर्मूले में यूज कर लेते हैं. दैट इज p इक्वल टू p नॉट. p नॉट दिया आपको 9261,000. 1 प्लस r इज व्हाट, r इज 3 अपॉन 100 रेज टू पावर n इज आल्सो 3. मैंने सिंपल बेसिक फॉर्मूला यूज कर लिया अपने क्वेश्चन में. कैंसिलेशन नहीं हो रहा है तो नो इशू, आप इसको डेसिमल में मत लिखें. ठीक है ना, इसको डेसिमल लिख दे. नो नो यूज. 100 बन जाए 100 प्लस 3 103. तो दिस इज वो 103 अपॉन 100 रेज टू पावर n. n की जगह आप पुट कर रहे हैं व्हाट, दैट इज 3. फॉर्मूले में n आपको दिया था, r दिया था, इस वाले फॉर्मूले में पुट कर. आई थिंक यहां तक किसी का कोई इशू नहीं. नो इस स्टेप के बाद लिखना पड़ेगा टेकन लॉग ऑन बोथ साइड. तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ p, लॉग ऑफ ब्रैकेट लगा के सारी डिजिट लिखो. 9261,000,103 अपॉन 100 इन पावर 3. अब देखिए लॉग क्या करेगा, प्रोडक्ट को सबको प्लस कर लेगा बीच में. तो लॉग ऑफ 9261 दिस वन ऐसे लगा के प्लस लॉग ऑफ दिस नंबर, पावर है तो आगे जाएगी +3. लेकिन फ्रैक्शन में है, छोटा ब्रैकेट लगा के क्या करें, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर लॉग के साथ. लॉग 103 माइनस लॉग 100. अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल के लिख लेंगे. अच्छा लॉग 100 पता है, 10 स्क्वायर 2 लॉग 10, तो ये 2 हो जाएगा. लॉग 100 इज 2. कुछ चीजें माइंड में सेट करके चले. लॉग 10 1, लॉग 100 2, लॉग 1000 3. ठीक है ना. ये चीजें अगर माइंड में सेट रहेंगी तो आप कैलकुलेशन में टाइम है थोड़ा कम लगेगा, आप फटाफट अपनी कैलकुलेशन कर लेंगे. तो इन सबको अगर इफ वी कैन सिंप्लीफाई, जैसे ये डेसिमल पोजीशन यहाँ है, इसको मैं इधर लेके आ जाता हूँ. then what we can write 9.261 multiply 10 raised to power. देखिए कितने प्लेस जम किया, 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6 प्लस 3. लॉग इधर है, इधर लेके आए 1.03 10 टू पावर 2, और इसको तो 2 लिख दिया. लॉग 100 दैट इज योर 2. नाउ
आप क्या देखेंगे, आप सीधे जिसका लॉग देना, पावर आ गई है, ट्रिक बता रखा है मैंने। पहले 6 लिख लेंगे, यल पावर 6, डेसिमल लगा देंगे, 92 लॉग टेबल में 92 का 6 देखेंगे, 1 लिखेंगे, ये डिजिट यहाँ आ जाएगी, प्लस 3 ब्रैकेट पावर 2 लगा लेंगे, डेसिमल 10 का 3 देखेंगे, वो डिजिट यहाँ आ जाएगी, -2। तो 3 से मल्टीप्लाई, पहले इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करके 3 से मल्टीप्लाई कर ऐड कर लेंगे, तो ये सिंगल डिजिट एक आ जाएगी आपकी, दैट इज log p of this one single digit. So p is what? P is of NP log of this number. This will question I will discuss in last 5 to 10 minutes. Just इसको फिर मैं निकलवा के आपसे log tables यूज करा के एग्जैक्ट आंसर निकालूंगा, राइट? We will discuss this one question in last 5 to 10 minutes जब हम लोग रिवीजन मोड में होते हैं या आपके डाउट मोड में होते हैं। तो ये क्या क्वेश्चन ऐसे हैं, दिस वन इज योर ग्रोथ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इन ग्रोथ, ठीक। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आपस में रिलेशन भी दिया होता है, उसमें आपसे जरूरी नहीं कि ए और पी के बारे में डिस्कस करेगा, उसमें आपसे टाइम पीरियड एन भी कैलकुलेट करा सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ला सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक। एक उसमें क्वेश्चन करते हैं, देन वी विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चन विथ यू। अब देखिए, दिस इज गुड क्वेश्चन, कह रहा इन हाउ मेनी ईयर विल एन अमाउंट डबल, कह रहा है अमाउंट डबल हो जाएगा, यानी स्टार्टिंग में सपोज अमाउंट पी है तो वो कितना हो जाएगा, 2p हो जाएगा, प्रिंसिपल मैंने पी ले लिया, तो अमाउंट विल बी डबल, दैट इज व्हाट, दैट इज 2p। कह रहा इन हाउ मेनी ईयर विल एन अमाउंट विल डबल इटसेल्फ एट द रेट ऑफ 12.2%, कह रहा 12.2% दे रखा उसमें, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक। तो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, a इज इक्वल टू p r/100 रेज टू पावर n। कितना हो गया अमाउंट, 2p, ये कितना था p, 1 प्लस r कितना है 12.2 अपॉन 100 रेज टू पावर n, आपको n निकालना है इस क्वेश्चन में। p and p is cancel out, here is 2 इक्वल टू 1 प्लस पॉइंट घटा लीजिए 122 अपॉन 1000 रेज टू पावर n, ठीक है। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन हो गया, 2 इक्वल टू एलसीएम ले लें, अगर काट सकते 1000 एंड प्लस ऐसे ऐड भी कर लीजिए, 1000 है और ये कितना है 122 है, इस तरह से तो गलती नहीं होगी आपसे। 1122 अपॉन 1000 रेज टू पावर n, अब ये आ गया, क्या करें, टेकन लॉग बोथ साइड, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टेकन लॉग इन बोथ साइड। अब इस स्टेप से आप लॉग ले लें, जब आप लॉग लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, log 2, पावर है तो पावर आगे आ जाएगी n, फ्रैक्शन है तो log 1122 माइनस log 1000 अभी मैंने कितना बताया था, 3 बताया था, 100 का 2 होता, 1000 का 3 होती वैल्यू, ठीक है। log 2 यानी 20 का 0 देख लेंगे, सीधे वैल्यू लिख देंगे, 20 का 0 लिख देंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू आएगी डिवाइड कर लेंगे, और इसके बाद आपकी देन यू विल कैलकुलेट योर वैल्यू ऑफ n, फिर आपकी n की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। Now I'm going to stop this.